اتوار 27 اپریل کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی روس پہنچ گئے، کہا پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں بطور ثالث اہم کردار ادا کیا۔ Pakistan is playing an important mediating role in the negotiations between Iran and the United States. It was necessary to have a review of the latest situation. جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 14 افراد ہلاک اور 37 زخمی۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف 3 مقدمات کی سماعت 6 ہفتے کی تاخیر کے بعد ایک مرتبہ پھر ملتوی۔ مالی کے وزیر دفاع علیحدگی پسندوں کے حملے میں ہلاک۔ Où il a malheureusement succombé. En outre, ayant entraîné la mort de certains fidèles qui étaient à l'intérieur. سنیے بکری چوری کا ایک ایسا واقعہ جو 48 ہلاکتوں کا باعث بنا۔ جانیے پانی پت کے میدان کے بارے میں جو ہندوستان پر حکمرانی کے لیے اہم ترین جنگوں کا مرکز رہا۔ یہ معمولی سا دکھنے والا شہر پانی پت ہندوستان کی تاریخ میں بہت اہم ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہے کیونکہ یہاں پہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے امپورٹنٹ یا سب سے اہم 3 جنگیں لڑی گئیں۔ 8 لاکھ روپے کا ایک رن۔ جانیے PSL کی نیلامی میں کروڑوں روپے میں فروخت ہونے والے کرکٹرز کی کارکردگی کیسی رہی۔ اس کے علاوہ وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات بھی آج کے سربین میں شامل ہے۔ بھلا جو راشٹرپتی اپنی ہی ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ کو یہ کہہ کے نکار دے کہ اسے کیا پتا کہ ایران بم بنا رہا ہے کہ نہیں، تو ہم تم کیا بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید خبریں بھی آج کے سربین میں شامل رہیں گی، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ روسی حکام کے ساتھ سینٹ پیٹرز برگ میں ان کی ملاقاتوں کا ایجنڈا کئی اہم امور پر مشتمل ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے مہر نیوز کے مطابق سینٹ پیٹرز برگ پہنچنے پر ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ روس میں اہم شخصیات کے ساتھ ملاقات میں جاری جنگ کی صورتحال، علاقائی اور عالمی پیش رفت کا جائزہ اور تہران اور ماسکو کے درمیان سیاسی تعلقات کو فروغ دینا ایجنڈے میں سر فہرست ہے۔ اراغچی نے مزید کہا کہ ماسکو کے ساتھ اس دورے کے دوران ایک وقفے کے بعد مشاورت کے عمل کو دوبارہ شروع کرنے پر بات ہوگی۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ روسی حکام کے ساتھ ملاقاتیں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کا عام موقع فراہم کرتی ہے۔ کرملن کے مطابق روسی صدر بھی سینٹ پیٹرز برگ میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید بتایا کہ مذاکرات میں دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی غور کیا جائے گا۔ ساتھ ہی علاقائی امور، خاص طور پر خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال پر بھی معاملات کو آگے بڑھانے پر بات ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ دورہ ان کے حالیہ دورے کا تسلسل ہے جس میں پاکستان اور سلطنت عمان شامل تھے، جہاں مذاکرات کی تازہ صورتحال اور مشترکہ امور پر بات چیت کی گئی، جبکہ آبنائے ہرمز میں بحری سلامتی سے متعلق مسقط کے ساتھ تکنیکی مشاورت بھی جاری ہے۔ عباس اراغچی نے روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں پاکستان اور عمان کے دورے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے حالیہ عرصے میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ثالث کے طور پر اہم کردار ادا کیا ہے، جس کے باعث اب تک کی تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال ضروری تھا۔ عباس اراغچی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ موجودہ علاقائی اور عالمی چیلنجز کے پیش نظر ایران اور روس کے درمیان قریبی تعاون خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ It is a suitable opportunity for us to hold consultations with our Russian friends regarding the developments that have taken place in relation to the war during this period and the current situation, and to review the latest situation together. Pakistan is playing an important mediating role in the negotiations between Iran and the United States. It was necessary to have a review of the latest situation. لبنان کی وزارت صحت نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود اتوار کو جنوبی لبنان پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 14 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان حال ہی میں جنگ بندی میں مزید 3 ہفتے کی توسیع کی گئی تھی۔ وجهك في كل القلوب
أيها القادم لأرض वजारत के एक बयान में कहा गया कि इतवार के रोज जनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों के नतीजे में 2 बच्चों और 2 खवातीन समेत 14 अफराद हलाक और 3 खवातीन समेत 37 जख्मी हुए हैं। यरूशलेम पोस्ट नामी खबरसा इदारे का कहना है कि इस्राएली वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू की अदालती समाअत शुरू होने से तकरीबन 90 मिनट कबल उनके वकील की दरखास्त पर अचानक मनसूख कर दी गई है। नेतन्याहू को आज तकरीबन 6 हफ्तों की ताखीर के बाद फौजदारी मुकदमे में गवाही देना थी। ये तीसरी मर्तबा है कि गजा में इसराइली कार्रवाइयों और हिजबुल्लाह के साथ जंग के बाइस अदालती समाअत मुलतवी की गई है। ताहम ताहाल हुकाम की जानिब से आज की समाअत में ताखीर और इसके मनसूख किए जाने की कोई सरकारी वजह सामने नहीं आई है। नेतन्याहू गुज़िश्ता 5 बरस से 3 अलग अलग मुकदमात में, जिनमें रिश्वत लेने, धोखाधड़ी और अमानत में खयानत जैसे इल्जामात हैं, का सामना कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल मौसम खिज़ा में इसराइली वज़ीर आज़म ने मुल्क के सदर से इस मामले में माफ़ी की दरख्वास्त भी की थी। दूसरी जानिब वाशिंगटन डीसी में शनिचर की रात व्हाइट हाउस रिपोर्टर्स के इशाइये के दौरान होने वाली फायरिंग के मुलजिम को आज अदालत में पेश किए जाने की तवक्को है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त कैलिफोर्निया के शहर टोरेंस से ताल्लुक रखने वाले 31 साल कोल थॉमस एलन के नाम से हुई है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इब्तिदाई तहकीकात से जाहिर होता है कि मुलजिम ट्रंप इंतजामिया के अरकान को निशाना बना रहा था और खुद डोनाल्ड ट्रंप भी एक मुमकिन हदफ थे। वाक़े के 1 घंटे से भी कम वक्त के बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि हमला आवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाद में हमला आवर की तस्वीर भी जारी कर दी गई। माली के वजीर दिफा दारुल हुकूमत बामाको के करीब अपनी रिहाइशगाह पर होने वाले बज़ाहिर एक खुदकुश ट्रक बम धमाके में हलाक हो गए हैं। मुतअद्दिद खबर रसा इदारों के मुताबिक सादेव कामारा की हलाकत मुल्क में जिहादी शिद्दत पसंदों और अलहदगी पसंदों की जानिब से किए गए मरबूत हमलों की एक लहर का हिस्सा है। सरकारी टीवी ने चंद घंटों बाद उनकी मौत की तस्दीक करते हुए कहा कि वो हमला आवरों का मुकाबला करते हुए जख्मी हुए थे और बाद अज़ां जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। Où il a malheureusement succombé. En outre, ayant entraîné la mort de certains fidèles qui étaient à l'intérieur. इतलात के मुताबिक माली में फौजी हुकूमत के सरबराह जनरल असीमी गोइता को उनकी रिहाइशगाह को निशाना बनाए जाने के बाद महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। उधर शुमाली इलाके में माली की फौज की जानिब से मुआवजे पर खिदमात सरंजाम देने वाले रूसी फौजियों ने 2 रोज़ा झड़पों के बाद कडाल शहर से इनखला पर आमादगी जाहिर की। ये बात अलहदगी पसंद ग्रुप इज़वाद लिबरेशन फ्रंट की जानिब से बताई गई है। माली गुज़िश्ता कई बरसों से अलकायदा और दौलत इस्लामिया से मुंसलिक ग्रोहों के साथ साथ FLA की बगावतों की वजह से पैदा होने वाले मसाइल का भी शिकार रहा है। पाकिस्तान के सूबे सिंध के जिला शिकारपुर में जुनेजो और कुल्हाड़ा बिरादरियों के दरमियान तकरीबन 9 साल तक जारी रहने वाली खूनी दुश्मनी बिलाखिर जिरगे के जरिए ख़त्म कर दी गई। ताहम इस तनाज़े में मजमूई तौर पर 48 अफराद जान से हाथ धो बैठे। ये दुश्मनी मुबैना तौर पर बकरी चोरी के एक वाक़े से शुरू हुई जो बाद अज़ां मुसल्लह तसादुम में बदल गई। दोनों बिरादरियों ने अपने इलाके को नो गो एरियाज में तब्दील कर दिया था, जिसके बाइस मामूलाते ज़िंदगी, कारोबार और तालीम शदीद मुतासिर हुए और कई स्कूल भी वीरान हो गए। हालिया जिरगे में दोनों फ्रीकैन पर मजमूई तौर पर 14 करोड़ 91 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया और आइंदा कशीदगी रोकने के लिए जमानतें भी ली गई हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक इस दौरान भारी असला, मोर्चे और मुसलसल पहरा मामूल बन चुका था, जबकि सिक्योरिटी पर लाखों रुपए माहाना खर्च होते रहे। हुकाम का कहना है कि यह तस्फिया हुकूमती सरेंडर पॉलिसी और कबायली रहनुमाओं की कोशिशों से मुमकिन हुआ, जिससे इलाके में अमन की उम्मीद पैदा हुई है। ताहम कानूनी माहिरीन ने जिरगा सिस्टम पर सवालात उठाते हुए कहा है कि ये गैर आईनी है और अदालतों के होते हुए ऐसे फैसले करना कानून की खिलाफ वर्जी है। सिंध हाई कोर्ट पहले ही जिरगों पर पाबंदी आयद कर चुकी है। माहिरीन के मुताबिक पायदार अमन के लिए जरूरी है कि ऐसे मुकदमात अदालतों में निपटाए जाएं ताकि कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाई जा सके। दिल्ली से तकरीबन 50 मील के फासले पर मौजूद शहर पानीपत हिंदुस्तान में 3 बड़ी जंगों का मरकज रहा है। अगरचे पहली 2 जंगों ने यह तय किया कि दिल्ली पर कौन हुकूमत करेगा, वहीं
तीसरी जंग ने यह फैसला किया कि दिल्ली पर कौन हुकूमत नहीं करेगा। पानीपत की पहली जंग के 500 साल पूरे होने पर मुअर्रख रहमा जावेद राशिद के साथ हमने पानीपत का सफर किया और ये जानने की कोशिश की कि किस तरह ये जंगें लड़ी गईं। ये मामूली सा दिखने वाला शहर पानीपत हिंदुस्तान की तारीख में बहुत अहम है और इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हिंदुस्तान की तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट या सबसे अहम 3 जंगें लड़ी गई। सबसे पहली जंग जो कि 1526 में लड़ी गई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में थी और इस जंग ने हिंदुस्तान के अंदर मुगलिया सल्तनत की एस्टैब्लिशमेंट की। ये सिर्फ नंबर्स की लड़ाई नहीं थी, क्योंकि अगर नंबर्स की लड़ाई होती तो बाबर की फ़ौजें जो सिर्फ 12,000 की थीं, वो इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फ़ौज से फौरन हार गई होती। बाबर ने पानीपत में रुक कर अपना कैंप लगाया और इस बैटलफील्ड को बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर किया। वहीं इब्राहिम लोदी 1 लाख लोगों को लेकर बाबर को कन्फ्रंट करने के लिए निकलते हैं। इब्राहिम लोदी की आर्मी बहुत बड़ी थी, बहुत एक्सटेंसिव थी, लेकिन बाबर की आर्मी समझदार थी। बाबर के पास एक ऐसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी जो शायद लोदियों के पास नहीं थी। बाबर के पास घुड़सवार थे, घुड़सवारों पर चढ़कर वार करने वाले तीरंदाज थे। बाबर के पास तोपें थीं, बंदूकची थे और गोला बारूद था। वहीं इब्राहिम लोदी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो थी वॉर एलिफेंट्स, और ये वॉर एलिफेंट्स बहुत वसी और बहुत बड़े वॉर एलिफेंट्स थे। दोनों फ़ौजें उस वक्त एक जैसी लग रही थी, बट असल में इन दोनों फ़ौजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये फ़र्क सिर्फ नंबर्स का नहीं था, ये फ़र्क सोच का था, ये फ़र्क प्लानिंग का था। जैसे ही बाबर इस फील्ड को प्रिपेयर करते हैं, उन्होंने जो सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस बनाई, उन्होंने करीब 700 या 800 बुलक कार्ट्स या बैलगाड़ियों को लेकर आपस में बांध दिया। उनके बीच में उन्होंने शील्ड्स खड़ी करी और उन शील्ड्स के पीछे जो उनके बंदूकची थे वो पनाह ले सकते थे। उस ज़माने की बंदूकों को रीलोड करने में बहुत वक्त लगा करता था, इसीलिए उनको उस प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, तो वो शील्ड्स लगाई गई जिसके पीछे छुपकर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते थे। उसके बाद बाबर की मेन आर्मी आती है और इस आर्मी के 2 बड़े इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं जो बहुत ही कारगर साबित हुए बाबर के लिए। एक है जो फ्लैंकिंग पार्टी कहलाती है, जिसको तोगलुमा भी कहा जाता है, और दूसरे जो माउंटेड आर्चर्स होते हैं, जो घुड़सवार होते हैं, जो कि आर्चरी भी जानते हैं, तीरंदाजी भी जानते हैं। अब बाबर जो हैं उन्होंने अपना ग्राउंड होल्ड करके रखा और वो इंतज़ार करते रहे कि इब्राहिम लोदी की आर्मी कब उनकी फायरिंग लाइन में आएगी। तो इब्राहिम लोदी की आर्मी जो है काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाती है और आगे आते जाते हैं, एंड देन दे रीच अ थ्रेशहोल्ड वेयर दे आर इन द लाइन ऑफ फायर ऑफ द गन्स एंड द कैनन्स and the तीरंदाज that Babur has employed. और इन तीनों वारों से क्या होता है कि उनकी आर्मी जो है वो बिल्कुल स्कैटर हो जाती है। जब आपकी लाइनें टूट जाती हैं तो आपकी आर्मी उस वक्त सबसे वल्नरेबल होती है। तब बाबर ने अपने जो स्टार परफॉर्मर्स कहेंगे उनको अनलीश करते हैं, जो फ्लैंकिंग पार्टीज़ हैं, जो तुगलुमा है। तो इन पार्टीज़ ने जाकर के जो इब्राहिम लोदी की आर्मी है उसको पीछे से घेर लिया। आगे से तोपों के वार हो रहे हैं और पीछे से इस आर्मी ने घेर लिया है इब्राहिम लोदी की आर्मी को। इस स्ट्रैटेजी का कोई जवाब नहीं था इब्राहिम लोदी के पास और इसी से जो है बाबर की जीत होती है। ये बैटल जो है, जो कि कई दिनों तक चलनी चाहिए थी, कई महीनों तक चलनी चाहिए थी, वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाती है। और दिस इज़ हाउ द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंडेड। इस फतह की याद में बाबर ने पानीपत में एक मस्जिद तामीर कराई जिसे काबली बाग मस्जिद के नाम से जाना जाता है, और मौरखीन के मुताबिक ये हिंदुस्तान में मुग़लों की बनाई पहली तामीर है। लेकिन बीच में कुछ रखने भी आए, जिसके नतीजे में यहाँ पानीपत की दूसरी जंग हुई, जो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और हेमचंद्र उर्फ हेमू के दरमियान 1556 में लड़ी गई। इस जंग ने हिंदुस्तान पर मुग़लों की गिरफ्त को मजबूत किया। फिर पानीपत के मैदान में तकरीबन 200 साल बाद एक और जंग लड़ी गई, जिसे पानीपत की तीसरी जंग कहा गया। मुग़ल सल्तनत की डिक्लाइन के बाद हिंदुस्तान में कई नई रियासतें वजूद में आ गईं, जिनमें अवध, हैदराबाद और बंगाल तो थे ही, लेकिन मराठास भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होना शुरू हो चुके थे। उन्होंने नॉर्थ इंडिया में अपना परचम लहराने का ख्वाब देख लिया था।
لیکن اس سے پہلے احمد شاہ ابدالی جو افغانستان کے راجا تھے کئی بار ہندوستان میں اسپیشلی پنجاب میں اپنا انویژن کر چکے تھے اور کئی شہروں کو لوٹ کر جا چکے تھے. انہوں نے پوری دنیا میں ڈکلیئر کر دیا تھا کہ پنجاب اب افغان امپائر کا پارٹ ہے. وہیں مراٹھاز نے نارتھ انڈیا میں آ کر پنجاب پہ حملہ کر دیا. اس کے چلتے احمد شاہ ابدالی ایک بہت بڑی فوج لے کر ہندوستان آئے اور پانی پت کا میدان پھر سے جنگ کا میدان ڈکلیئر ہوا. مراٹھے اپنے دیش سے بہت دور تھے. ان کی آرمیز جو کہ ابھی تک اپنی سپیڈ کے لیے، اپنی ایجلٹی کے لیے، اپنی رفتار کے لیے جانی جاتی تھی، وہ فوجیں بہت زیادہ سلو ہو چکی تھی کیونکہ ان کے پاس جو آرٹلری تھی وہ بہت بھاری ہو چکی تھی. ان کی فوجوں کا نمبر بڑھ چکا تھا، وہ بہت پریڈکٹیبل ہو گئی تھی، بہت سلو ہو گئی تھی. وہیں احمد شاہ ابدالی کی فوجیں بہت مضبوط ہو گئی تھیں. ان کے پاس نئی طرح کی ٹیکنیکس، نئی طرح کی کیننس، حملہ ور ہاتھی اور بہت بڑی کیولری اکٹھی ہو گئی تھی. اس کے علاوہ کئی افغان کنٹنجنٹس، کئی افغان پرنسپیلٹیز جو کہ ہندوستان میں اس وقت بہت زیادہ پاورفل ہو چکی تھیں، انہوں نے بھی احمد شاہ ابدالی کا ساتھ دیا. یہ بیٹل ہوئی اور چند ہی گھنٹوں میں احمد شاہ ابدالی کی فورسز نے مراٹھاز کو پوری طریقے سے ہرا دیا اور ایک بار پھر پانی پت نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہندوستان میں کون رول نہیں کرے گا. پاکستان سپر لیگ سیزن 11 کے لیگ مرحلے کے اختتام پر جہاں پلے آف کی ٹیمیں سامنے آ گئی ہیں، وہیں مہنگے کھلاڑیوں کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی ہے. سب سے مہنگے کھلاڑی سائم ایوب خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکے اور 10 میچز میں صرف 151 رنز بنا سکے، جبکہ قومی ٹیم کے کپتان سلمان علی آغا بھی 9 میچز میں 112 رنز تک محدود رہے. اس کے برعکس صاحبزادہ فرحان نے شاندار فارم برقرار رکھتے ہوئے 365 رنز بنائے، جبکہ بابر اعظم نے 485 رنز کے ساتھ اپنی ٹیم کو سر فہرست رکھا اور ایک مرتبہ پھر اپنی کلاس ثابت کی. بالنگ میں فہیم اشرف اور محمد عامر بھی توقعات پر پورا نہ اتر سکے، جبکہ شاہین شاہ آفریدی اور سفیان مقیم نمایاں رہے. غیر ملکی کھلاڑیوں میں کوشال مینڈس اور سٹیو سمتھ نے عمدہ کارکردگی دکھائی. سوشل میڈیا پر مہنگے کھلاڑیوں خصوصاً سائم ایوب کی کارکردگی پر تنقید کی جا رہی ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ نوجوان کھلاڑیوں کو اپنی خامیوں پر توجہ دینا ہوگی. اور سامعین، اب پیش ہے وسعت اللہ خان کا کالم بات سے بات. کوئی بتا سکتا ہے کہ کل کے اور آج کے ٹرمپ میں کیا انتر ہے؟ آپ کو تو 22 ستمبر 2019 اچھے سے یاد ہوگا جب ہیوسٹن میں NRI سے کچا کچ بھرے اسٹیڈیم میں ہاؤ ڈی مودی کے چھت پھاڑ نعروں کے درمیان پردھان منتری جی ٹرمپ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پورے اسٹیڈیم کو کس طرح اپنی مثالی دوستی سے گرما رہے تھے، اور پھر ہاؤڈی مودی کے 5 مہینے بعد فروری 2020 میں جب ٹرمپ نے نمستے کرتے ہوئے احمد آباد کے کرکٹ اسٹیڈیم میں کہا کہ بھارت کے لیے میرے دل میں ہمیشہ پیار رہے گا، تو مانو پورا دیش ہی جھوم اٹھا تھا. بس یوں سمجھ لیں کہ ان دنوں شہباز شریف کی ملی جلی سرکار کے سمرتھکوں کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ساتھ ایک میز پہ روٹی توڑنے کی اتنی ہی خوشی ہے جتنی آپ کو تب ہو رہی تھی. ہمارے ٹی وی سکرینز پر بھی ہر دوسرا ٹپنی باز بتا رہا ہے کہ پاکستان امریکہ سمبند ری سیٹ ہو گئے ہیں. وہ ٹرمپ اور تھا جو وائٹ ہاؤس کی پہلی پاری میں پاکستان کو یہ تانے دیتے نہیں تھکتا تھا کہ ہم سے تم نے 70 ورش میں اربوں ڈالر لے کے بھی کام دھیلے کا نہیں کیا. اور یہ ٹرمپ اور ہے جس نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کے بعد پترکاروں سے کہا کہ میرے دل میں ان کے لیے بہت آدر سمان ہے کیونکہ انہوں نے 10 مئی کو جنگ رکوانے میں اہم بھومکا نبھائی. وہ الگ بات کہ دونوں کی ایک بھی تصویر وائٹ ہاؤس نے میڈیا کے لیے جاری نہیں کی. یہ بات کون کسے سمجھائے کہ گلوبل راجنیتی میں جس نے جپھی کو یاری اور بھوجن کو محبت سمجھا وہ مارا گیا. دنیا میں کوئی جپھی پپی بنا مطلب اور کوئی لنچ فری نہیں ہوتا. امریکہ ہو یا کوئی بھی بڑا دیش، سب کا حساب کتاب سیدھا سیدھا ہے. تم اپنی اپنی جنتا سے کیسے نپٹ رہے ہو یہ تم جانو. بس تم ہمارے کام آؤ تو ہم تمہارے کام آئیں گے، ورنہ آپ کون ہم کون.
दुख उन देशों के नेतृत्व को देख के होता है जो विदेशी संबंधों को फ्लर्ट की बजाय यारी समझ लेते हैं, और फिर जब दूसरा आंखें फेरता है या किसी और से आंख मटकना शुरू कर देता है तो टूटे हुए आशिक की तरह आहें भरते हैं। यही ट्रंप है जिससे मिलने के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अपने स्वागत के लिए आई भीड़ को हाथ हिलाते हुए कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। आज इमरान खान कहाँ है और जेलर ट्रंप के साथ लंच कर रहा है, और दोनों इस बारे में एक पेज पर हैं कि पाक भारतीय युद्ध ट्रंप ने रुकवाया, और फिर मोदी जी को फ़ोन कॉल करके ट्रंप को बताना पड़ रहा है कि जो आप कह रहे हैं वैसा तो नहीं है। इसके बावजूद ट्रंप साहब हर दूसरे दिन क्रेडिट लेना नहीं भूल रहे। ज़ख्मों पे और नमक ये कह के छिड़का जा रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि इस बार नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को मिले। ऐसा हो ना हो, कहने में क्या जाता है, मगर फील्ड मार्शल और ट्रंप साहब की मुलाकात से एक बात तो साफ हो गई कि पाकिस्तान में हीरो कौन है, और सिविलियन सेटअप पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की भूमिका निभाने वाले को स्क्रिप्ट्स में कितनी लाइनें मिली हैं और अगले 10 वर्ष का सेटअप क्या होगा। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फ़ौज और सिविलियंस की मिली जुली हाइब्रिड रिजीम मुसलसल कामयाबियां समेट रही है, मगर अपने पिछले तजर्बों की रोशनी में पाकिस्तान ये भी समझता है कि दुनिया किसी न किसी तरह ट्रंप का दौर सहजता से झेल जाए तो यही एक बड़ा कारनामा होगा, क्योंकि वाइट हाउस इस वक्त एक रोलर कोस्टर है जहां सुबह और शाम फैसले अलट पलट रहे हैं। भला जो राष्ट्रपति अपनी ही डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबार्ड को ये कह के नकार दे कि इसे क्या पता कि ईरान बम बना रहा है कि नहीं, तो हम तुम क्या बेचते हैं। ये किसी के ट्रंप से रूठने या खुश होने का नहीं, घोड़े की अगाड़ी और पिछाड़ी से बचने का समय है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से कबल अब तक की खास खबरें। पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया है। सोमवार के रोज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 27 अप्रैल को होने वाले इजलास में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 28 अप्रैल से पॉलिसी की शरह 100 बेस पॉइंट से बढ़ाकर 11.50% करने का फैसला किया है। याद रहे, इससे कबल जनवरी के आखिर में मरकजी बैंक ने शरह सूद को बरकरार रखा था।